Hello everyone. Welcome to day 6 of induction training class. Sorry for some delay. I was actually stuck in some traffic while returning home. So got 10 minutes delayed. Actually, the class was scheduled to start from 8 p.m. So now again the class will start. And as I told, like yesterday also, I was not able to take the class. The reason already all know. So I don't think to repeat it again and again here. It will go like this till this weekend. We are hoping that by Monday I will be free of these things, and whatever the classes we will miss, like yesterday we may miss, it will be done on Saturday. If one day is missed in between, it will be completed on Sunday, so we don't need to worry about anything. And one more thing I wanted to say that in case, whenever, I will never try to disturb your weekend. I have already committed that while in the intro session only. But in case in the week we miss the class due to some reasons, then in daytime on weekend, mostly your plans will be in evening only. So in daytime we can put the classes, and recordings are always there, so you can see it. And if you are not available in the weekend, you can just directly, whenever the classes will be there in the weekend, if you are available or if you are not available, your leaves will not count. Okay, even if you are absent from the classes, your leaves will not count, so you need not to worry about that. अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा आप लोगों को पता है, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी एट माय होम, कंसिस्टेंटली क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई हैं। तो कल की जैसे वो क्लास मिस हुई है, डेट विल बी कंप्लीटेड ऑन सैटरडे। एंड इन बिटवीन, अगर आज कल में भी अगर कोई क्लास मिस होती है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई क्लास मिस ना हो। इन केस एनी क्लास इज मिस्ड, देन वी विल कंप्लीट इट ऑन संडे। और इन फ्यूचर ऑल्सो जब भी कोई क्लास मिस होगी, तो वी विल ट्राई टू कवर इट अप इन सैटरडे एंड संडे। मीन्स वी विल हैव 2 days बफर। Like in weekdays, if we miss, we can cover it in on Saturday and Sunday in the daytime, not in the evening time, but even the daytime. और जो भी लोग Saturday, Sunday, weekend, I have committed you all in the intro session only that I am not going to disturb you. That I am not going to disturb you all in the weekends, but in case, because syllabus is very important and we all have to cover the whole syllabus, so that's why in between, if it will be required, I will take the classes in the weekend also. If in the मतलब वीक के मिड में अगर सम क्लासेस आर कैंसल्ड, तो वो आपको वीक के मिड में होंगी, एंड में होंगी। एंड अगर आप वीकेंड पे अवेलेबल नहीं हैं और आप क्लास में नहीं हैं, या आप बिना इन्फॉर्म किए भी क्लास में नहीं है, तो आपकी लीव्स वीकेंड में नहीं कटेंगी। ठीक है, ओनली लीव्स विल बी डिडक्टेड टिल मंडे टू फ्राइडे इफ यू आर नॉट अवेलेबल एंड यू हैव नॉट इन्फॉर्म द टीम। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं और आपने टीम को इन्फॉर्म नहीं किया है मंडे टू फ्राइडे के दौरान, तो आपकी लीव्स डिडक्ट होंगी। मतलब जो भी आपकी एनुअल लीव्स आपको दी गई हैं, जो इंट्रो सेशन में मैंने आपको बताया है, वो डिडक्ट हो जाएंगी। बट इन केस वीकेंड में अगर क्लासेस होती हैं, आप अवेलेबल हो या ना हो, आपकी लीव्स डिडक्ट नहीं होंगी, क्योंकि दैट क्लासेज आर गोइंग टू बी टेकन इन वीकेंड, सो इट इज नॉट अ कंपल्सन। एनीवेज, ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लासेज में कुछ और बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में फिर आपको बहुत समराइज्ड फॉर्म में मिल रहा है। यू गेट द डिटेल रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सो इन केस अगर आप वीकेंड में क्लासेज मिस करते हैं किसी भी रीजन से, देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग फर्दर। ठीक है, एंड आप लोगों को नाउ यू विल बी गेटिंग सरप्राइज दैट यू आर ओनली 80 एंड यू आर गेटिंग 122 प्लस staffs here. Actually, these 60-70 staffs have been merged from our previous job group that was for different purpose, but ultimately that purpose didn't got solved, so all have been merged in Trader Yoddha. So at present, as per current day counting, we have around 150 members, 150 employees in Trader Yoddha at this moment. So the requirement of batch 2 has already been fulfilled. Okay, so near future no vacancy is going to come, because we are already having 150 employees with us at this moment of time. Okay, rest two groups have been made. One is Trader Yoddha Group 1 and one is Trader Yoddha Group 2. Trader Yoddha Group 1, those who have originally joined Trader Yoddha. Trader Yoddha Group 2 is those who have joined after getting merged from their प्रीवियस जॉब, जो पीछे के जॉब से, जो उनकी जो भी जॉब थी वहां से वो मर्ज होकर यहाँ पे आए हैं। तो टिल द टाइम देयर बॉन्ड फॉर्म एंड गूगल फॉर्म ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीट, दे विल बी इन ग्रुप 2। वंस
उनका सारा प्रोसेस जो ट्रेडर योद्धा के गाइडलाइंस के हिसाब से है वो कंप्लीट हो जाएगा। दे विल बी मर्ज्ड इन ग्रुप 1। फिर एक साइमल्टेनियसली 150 लोगों का, 150 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बन जाएगा, एंड देयर एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। मुझे बस 31st तक टाइम दीजिए। एक बार माई mom anyhow reaches home, then I will be very much happy. Yesterday also she was in very serious condition. But see, it's okay. Life is like that only. Okay, तो यही सारी चीजें थी मुझे बतानी थी। थोड़ा लेट हुआ है ना। I will finish my class around 9, 10, and again I will have to leave. So by this week it will go like this. Or in case we miss the class, it will be continued in the weekend. बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो उसको हम वीकेंड में जो क्लासेज होंगी उसमें हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड योर सैलरी अकाउंट फॉर्म विल बी अपलोडेड बाय टुमारो, and by 31st whatever the rectification anything it has to be done, it will be done. And from till and 10th of August, till 10th of August, you all will get your stipend, which is 45K, which has been already been decided. Okay, apart from that I don't think anything else is there required। हाँ, जो आपका बॉन्ड, आपको जो बॉन्ड फॉर्म था, क्योंकि नाउ ऑलरेडी 70+ एम्प्लॉयज हैव बीन मर्ज फ्रॉम आवर प्रीवियस वेंचर टू दिस वेंचर, तो उनके भी बॉन्ड्स अब साइन होने हैं। तो एक बार सबके बॉन्ड्स कलेक्टिवली साइन होके, सब कुछ होके, स्टैम्प स्टैम्प होके, जब सारी चीजें रेडी हो जाएंगी, आई विल ट्राई कि वो 10th of August तक आपके पास पहुंच जाए, जैसे भी करके हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी 5th of August या 6th of August तक पहुंच जाए। मैं एक बार सारी चीजें एक बार टीम से डिस्कस करके लेटेस्ट जो भी डेट एंड अपडेट्स होंगे वो मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेज। हम क्लासेस फर्दर अपनी स्टार्ट करते हैं। तो या तो आई होप एवरी वन इज एबल टू सी द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। स्क्रीन अगर शो हो रही है आपको तो ओके, थैंक यू। थैंक यू। नाउ आई एम क्लोजिंग द चैट बॉक्स, क्योंकि जब चैट बॉक्स चलता रहता है तो इट इट डज द डिस्ट्रैक्शन। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप टीम को भेज ही देते हैं, टीम रिप्लाई कर देती होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 7 बजे के बाद एम्प्लॉयज के लिए क्वेरी टाइम इज फिक्स्ड फ्रॉम 4 PM to 7 PM। आप मेल डाल दीजिए। मेल आप 24 घंटे में कभी भी डाल सकते हैं ट्रेडर योद्धा को। कॉलिंग और टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई 4 से 7 के बीच में ही मिलेगा। 7 के बाद अगर आप मैसेज करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, 3 बार आपको वार्निंग दी जाएगी। 3 बार के बाद आपको 1 महीने के लिए म्यूट कर दिया जाएगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है वो प्लीज ट्राई कीजिए कि 7 बजे तक रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है नेक्स्ट डे का वेट कर लीजिए, ठीक है। बट 7 o'clock के बाद अगर आप टीम को मैसेज करेंगे बीइंग एन एम्प्लॉय, तो 3 वार्निंग के बाद आपको 1 महीने के लिए दे विल म्यूट, ठीक है। प्लीज अवॉइड बाय द रूल्स, वट एवर द रूल्स दे हैव मेड यू विल हैव टू फॉलो इट। बिकॉज उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी अपनी चीजें हैं, एंड दे आर सिंस मॉर्निंग 9 to 7 दे आर एक्टिव, दे आर देयर फॉर दिस थिंग ओनली। सो वी विल हैव टू कीप देम थिंग्स लाइक दैट। ओके, चलिए। सो नाउ क्लोजिंग द चैट बॉक्स and let's start our class. So today, as we were continuing further, now today we will talk about the thing is know your purpose. In last class, we talked about our terminal objective. What is your terminal objective being a trader? ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर यू ऑल। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि नोट्स बनाते जरूर चले जाइएगा, ठीक है। एनी हाउ आवर कंटेंट एडिटर इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नोट्स, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 month to 2 month, तो उतना दिन वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अभी अपने नोटबुक में जो भी है उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइएगा। नो योर पर्पस, आपका पर्पस, आपका सबसे पहला सवाल आपसे ये होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ सैलरी के लिए अभी जब तक ट्रेनिंग चल रही है आपकी, 3 महीने तक चलेगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ 3 months तक, आपको सिर्फ अपने स्टाइपेंड से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आप बस यही दिमाग में बिठा लीजिए, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने एक कोर्स ज्वाइन किया है और मुझे वहां पे जी जान लगा के ट्रेडिंग इन द बेस्ट मैनर सीखना है।
दैट्स इट, यही दिमाग लगा के रखिए आप। इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं पता, 3 महीने तक जस्ट यू आर देयर टू लर्न एंड टेक दिस स्टाइपेंड, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड गेट सम मनी ऑल्सो फॉर योर लर्निंग, लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और मैं आपको आपके सीखने के पैसे भी दे रहा हूँ, आप यही सोच के इस चीज को करिए। जॉब दिमाग में लेके आप आएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर को जितना जो लर्न कर पाना चाहिए, जितना जो यहाँ पे आपको सीख पाना चाहिए, आप वो यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। तो अगर आप मार्केट में आए हैं, जिस दिन आप मार्केट में आए, वेन एवर यू केम इन द मार्केट, द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड हैव टू आस्क फ्रॉम यू, आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए था, वाई आर यू इन मार्केट? आप इस मार्केट में क्यों आए हैं? वाई आर यू इन दिस मार्केट? ठीक है, क्यों, वाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैंने भी अपने आप से नहीं पूछा था, और शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने नहीं पूछा होगा। बस एक ही चीज होगी कि साइड इनकम चाहिए, साइड इनकम के चक्कर में आ पड़े हैं मार्केट में। ठीक है, यही होगा, मैक्सिमम लोगों का यही होगा। ओके, सो द थिंग इज दैट जस्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाई आर यू इन दिस मार्केट, क्यों आप आए हैं यहाँ? सोचिए जरा, 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए क्यों आए आप यहाँ। ठीक है, क्यों आप आए? 2 मिनट का टाइम एनालाइज कीजिए। देखिए, क्यों आप आए यहाँ मार्केट में। ठीक है, ये एक तरीके से आपका होमवर्क भी है। आप मार्केट में क्यों आए, और अभी तक आपने मार्केट में क्या किया, ये आपको अपने थॉट्स को मेंशन करना है। मैं फॉर्म डाल दूंगा, उस फॉर्म में आप फिल करके भेजेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, कम से कम आपको सेल्फ रियलाइज तो हो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा मुझे फिर यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट नाउ देर आर 150 स्टूडेंट्स। ओके, 150 स्टूडेंट्स हैं, एंड दे ऑल विल आंसर द क्वेश्चन, व्हाई आर यू इन द मार्केट, व्हाई आर यू इन दिस मार्केट, आप इस मार्केट में क्यों हैं। ठीक है, और आपने इस मार्केट से, अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तीन तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का एक एक शीट जाएगी आपके पास, आपको उस शीट में आंसर देके फिर वापस भेजना है। आई विल चेक इट एंड आई विल रीएवेलुएट इट, और फिर मैं आप सभी 150 मेंबर्स को, 150 स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि देखो कॉमन मिस्टेक क्या आ रही है, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक दैट एवरीवन हैज डन। ठीक है, वैसे सबको पता ही होगा ये, है ना। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ एंटरिंग द मार्केट विदाउट अ टारगेट और गोल। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट कर दूंगा। मैक्सिमम अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, तो 95 लोग जो होंगे वो मार्केट में आते हैं, और उनका ना कोई टारगेट फिक्स होता है और ना कोई गोल होता है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले गोल दे दिया है। इफ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द गोल, दैट इज योर CAGR, दैट इज योर अल्टीमेट गोल। आपको जब तक आपका गोल नहीं पता होगा, आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में, आप इस मार्केट में कामयाबी नहीं पा सकते हैं। टिल द टाइम यू डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस फील्ड, व्हाट इज योर गोल इन दिस मार्केट, यू आर नेवर गोइंग टू अचीव योर टारगेट। ठीक है, तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए, और आपको आपका गोल ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज योर CAGR एज पर योर कैलकुलेशन, एज पर योर ऑनेस्ट कैलकुलेशन। जो आपके ऑनेस्टी के हिसाब से जो आपका कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से यू हैव ऑलरेडी गॉट CAGR देयर। ओके, दिस इज योर गोल, कीप दैट इन माइंड। योर गोल इज टू अचीव योर CAGR, आपकी आपका गोल है आपके 10 ईयर्स के CAGR को आपको अचीव करना है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी आपने डिसाइड किया है। और फिर इसको अगर आपने 10 ईयर्स किया है, तो फिर ईयर बाय ईयर, 1 ईयर ईच, ये 1 ईयर, फिर 12 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 1 मंथ, इस तरीके से ये बाइफरकेट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस इज योर गोल। ठीक है, मार्केट में सब कोई किस लिए आते हैं पता है? एक करवा सच बताता हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा, अ वेरी बिटर ट्रूथ विच आई एम टेलिंग, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में हम किस लिए आते हैं। मार्केट में हम आते हैं
क्योंकि हमें चाहिए होता है इजी मनी। हमें चाहिए होता है इजी मनी। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बोलिए। क्या आप मार्केट में इजी मनी के लिए नहीं आए थे? ठीक है, ईमानदारी। अगले 2 ढाई महीने 3 महीने आपको खुद से ईमानदार होना है, मेरे हर सवाल का जवाब आपको ईमानदारी से देना है। ठीक है। वेदर यू केम इन दिस मार्केट फॉर इजी मनी और नॉट, कमेंट कीजिए, यस और नो। आप मार्केट में इजी मनी के लिए आए थे ना? एवरीवन। ऑफ कोर्स सब लोग यस हैं, होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे। एवरी वन कम्स इन दिस मार्केट फॉर इजी मनी। मैं मार्केट में क्यों आया था? मैंने देखा कि भाई मैं एक बैंक में एक सरकारी नौकरी में काम करता हूँ। मेरे बगल में एक इंसान काम करता था जिसका नाम था शमशाद खान। ठीक है। एंड ही वॉज अ गुड ट्रेडर, एंड ही डिड ट्रेडिंग इन इक्विटी। इक्विटी में वो इंट्राडे करता था। ठीक है। उस समय तक मुझे ट्रेडिंग की एबीसीडी भी नहीं पता थी, और जहां जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से आई बिलोंग, वहां पे ट्रेडिंग को इट इज नोन एज गैम्बल। उसको हम लोग, उसको हमारी फैमिली में गैम्बल बोलते हैं या फिर सट्टा बाजार बोलते हैं। ठीक है, ये जुआ है। ठीक है, इट इज अ गैम्बल, यही दिस इज द कॉमन मिसकंसेप्शन। सब लोगों को यही कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए भी एक तरीके से, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है। जब न्यूज़पेपर पढ़ता था, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, देन आई गॉट टू नो दलाल स्ट्रीट, सट्टा बाजार। आज सट्टा बाजार का भाव ये है। ठीक है, आज कभी भी कहीं पे मार्केट लिखा हुआ नहीं होता था हिंदी न्यूज़पेपर में। ऑलवेज इट वाज रिटन लाइक दलाल स्ट्रीट, सट्टा बाजार, लाइक दैट। ठीक है, शेयर बाजार, है ना, शेयर बाजार इस तरीके से लिखा होता था। ठीक है, तो माई माई ऑल फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड ऑल रिलेटिव्स, देयर कॉन्सेप्शन वाज लाइक दिस ओनली। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं उसके साथ बैठता था, एंड ही वाज अर्निंग मनी डेली लाइक 1500, 2000, 300, 3000, एंड एवरी डे इन इवनिंग, बिकॉज वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मुझे बताता था, यार रवि देख आज मैंने 2500 रुपये बना दिए। मैं बोलता हूँ तू भी शुरू कर ले, तो शुरू करता ही नहीं है। ठीक है यार, देख आज आज ज्यादा नहीं बनाया, चल 600 रुपये बनाए, खर्चा पानी निकल जाएगा। ठीक है, इट वॉज लाइक दैट। मैंने 10 दिन सुना, मैंने 20 दिन सुना, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में था उस टाइम पे। अब कौन सी दुनिया में था ये मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर 3 महीने सुना, चौथे महीने से मेरे दिमाग में, बिकॉज मनी अट्रैक्ट्स, है ना, पैसा सबको अट्रैक्ट करता है। आपको क्या लगता है, ये जो कोविड के बाद इंडिया में जो ट्रेडिंग का बूम आया है, ये क्यों आया है? कोविड के बाद ये ट्रेडिंग का बूम क्यों आया? कोविड के टाइम में लोगों की जॉब्स गई, लोगों को घर पे बैठने का मौका मिला। कोविड के बाद दुनिया बहुत बदल गई। आगे आज के बाद, मतलब अभी के बाद, जब हम आज से 100 साल के बाद हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, वहां पे वी विल बी स्टडिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, एक प्री कोविड एंड नेक्स्ट विल बी पोस्ट कोविड। प्री कोविड की दुनिया अलग थी। प्री कोविड की दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे का सुख दुख जानते थे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है, बिन अकेले में मजा नहीं आता था, फोन में जिंदगी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लाइफ वाज लाइक इन द हैप्पीनेस। एक ही फैमिली में एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर 7 लोग डिनर कर रहे हैं, तो सातों के सातों अपने फोन में घुसे हुए नहीं रहते थे। ठीक है, वो चीज उस समय उतनी डेवलप नहीं हुई थी इन 2019, इफ आई कैन डिस्कस 2020 तक। ठीक है, बट कोविड चेंज्ड एवरीथिंग। ठीक है, कोविड के दौरान क्या हुआ, लोगों को घर पे रहने का मौका मिला। ठीक है, लोगों को, क्योंकि जब लोग जॉब पे जाते हैं तो क्या होता है, जॉब पे जाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, यू डू योर एक्सपेंसेस, यू डेली ट्रेवल, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप जब घर पे बैठते हैं, तो आपके पास सोचने का टाइम होता है। बोलते हैं ना, वी से दैट ब्लैंक माइंड इज ऑलवेज अ घोस्ट, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो इट इज लाइक दैट ओनली। तो कोविड के टाइम में लोगों को घर पे रहने का मौका मिला, और लोगों ने भर भर के 2-2, 3-3, 6-6, 8-8 महीने की सही वर्क फ्रॉम होम था, बाहर निकलना नहीं था, तो कोई खर्चा है नहीं, घर पे रह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। जो भी डेली हम बाहर जाके खाते हैं, या जो भी हम कुछ पीते हैं, नशे करते हैं, जो भी करते हो आप, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस आप तो आपके बंद हो गए।
तो मान लीजिए अगर आप महीने के 1 लाख कमाते थे और आपका अपना घर था, सारी चीजें थी, और आपका मंथली 30-40 हजार का खर्च था, तो वो तो सीधा 20-30% पे आ गया ना। ठीक है, क्योंकि आप बाहर निकल ही नहीं रहे, है ना। तो इस दौरान लोगों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई, पैसा आया। पैसा आया तो फिर उसके बाद लोगों ने तरीका ढूंढना शुरू किया कि घर पे रह के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। घर पे रह के पैसे, ये एनालिसिस एंड स्टडी है, मेरी एनालिसिस नहीं है, ये प्रॉपर स्टडी है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी किताब है, प्री कोविड पोस्ट कोविड, ये सारी चीजें वहां पे राइटर ने एनालाइज की हुई है। ठीक है, तो एक एनालिसिस आई, उसने बताया कि लोगों ने उसके बाद पैसे कमाने के तरीके घर पे रह के ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले आया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पे धड़ाधड़ रील्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, ट्रेडिंग में लोग इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए। कोविड के दौरान, कोविड से पहले ट्रेडिंग जो है वो चलती थी, बट इतनी फेमस नहीं थी। ठीक है, अब उसमें ट्रेडिंग में फिर कोविड के टाइम में लोगों को अच्छे खासे ऑप्शंस में प्रॉफिट भी होने लगे, क्योंकि मार्केट खुलती थी और डेली 1,000, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट ऐसे गिरे जा रही है। ठीक है, यू विल इमेजिन बैंक निफ्टी टच्ड 18,000 फ्रॉम 36,000। आप सोच सकते हैं, कैन यू इवन इमेजिन इट। ठीक है, इट वॉज लाइक दैट, 18,000 पॉइंट का फॉल, है ना, मजाक थोड़ी है। ठीक है, सो सोचिए लोगों ने कितने पैसे बनाए होंगे। तो एक तो ट्रेडिंग बूम आया, दूसरा आया ये यूट्यूब का बूम। लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लोगों ने अपने अपनी हॉबी को, अपने फैशंस को, अपने तरीकों को डेवलप करना शुरू किया। फिर तीसरा आया ओटीटी का बूम। लोग ओटीटी पे आ गए। ओटीटी मतलब ओपन टेलीविजन प्लेटफॉर्म, है ना, मतलब अब आप देखेंगे लोग थिएटर्स जाना पसंद नहीं करते, लोग घर पे बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं, घर पे बैठ के मूवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो चीज थिएटर में आज रिलीज हुई है वो 10 दिन के बाद आपको फिर टीवी पे आई जाती है। ठीक है, तो अब वी बिकेम जजमेंटल। हमारे पास कंटेंट आया, दुनिया भर का कंटेंट आया। जब हम जॉब में होते थे तो हमें अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये सब देखने का मौका नहीं मिलता था। जब घर पे बैठे तो दुनिया भर के कंटेंट मिले, हमें अलग अलग टाइप की वेब सीरीज मिली, अलग अलग टाइप के मूवीज देखने को मिले, अलग अलग टाइप की स्टोरीज देखने को मिली। फिर हमने फॉरेन स्टोरीज भी एक्सप्लोर किया, इंडियन स्टोरीज भी एक्सप्लोर किया। तो हमें लगा अरे कंटेंट तो किंग होता है, हमें तो ये प्यार मोहब्बत की चीजें दिखा दिखा के ऐसे ही बर्बाद किया गया। दुनिया में देखो क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैं शुक्र मनाता हूं कि जब कोविड था देन वे वेयर इन द हमारे पास इंटरनेट की बेहतरीन सुविधा थी। वी वेर हैविंग अ गुड रिसोर्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन, है ना। दैट वाज द बून फॉर अस, बिकॉज घर पे बैठ के वी एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। दिन दिन भर में हमने कितना जाने कितने वीडियोस देख डाले, कितनी वेब सीरीज देख डाली, है ना, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद की दुनिया कैसी हो गई, लोग घर में रहना पसंद करने लगे। लोग एक दूसरे से रिजर्व हो गए, लोग अब उतने घुल मिल के बात नहीं करते। कोविड के बाद की दुनिया इज कंप्लीटली डिफरेंट, हर कोई हर किसी को शक की नजर से देखता है। ठीक है, हर कोई हर किसी को उतना रिजर्व, अपने आप में लोग रिजर्व हो गए। अगर एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर पे 4 लोग, 4 फैमिली रहती है, तो पहले की उनकी लाइफ अलग थी, अब की लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उनको अकेले रहना आ गया। बंद होके अगर आप 4 महीने 6 महीने लॉकडाउन लग गया कंट्री में और आप रह पाए वैसे, तो आप सोचिए ना, आपको तो अकेले रहना आ गया ना। यू स्टार्टेड लिविंग अलोन, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अकेले रहा जा सकता है एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर। तो आप अकेले रहने लग गए, इज इट। आप अकेले रहने लग गए। ठीक है, तो लोगों को और इसमें मजा आना शुरू हो गया और अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो ड्यू टू दैट चीजों चीजें जो है वो कंप्लीटली बदलने लग गई। ठीक है, अब वहां से फिर फर्दर जब लोगों के पास पैसा आया, तो पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, लोगों ने ये सोचना शुरू किया। ये सोचना शुरू किया तो फिर लोग मार्केट में घुसने शुरू हो गए, मार्केट में उनको इजी मनी दिखा। और शुरुआत में आफ्टर कोविड मार्केट ने इजी मनी दिया भी है लोगों को, मार्केट है इजीली गिवन इजीली इजी मनी टू, बहुत से लोगों को इजी मनी दिया। बट अब वो इजी मनी है नहीं। ठीक है, अब पड़ गया है सूखा। अब जैसे मान लीजिए जिसने कल बजट के दिन पैसा कमाया होगा और आज अगर वो वोलेटिलिटी को नहीं संभाल पाया होगा, उसकी तो आज लंका लग गई होगी। सिंपल सी बात है, मैं भले ही ट्रेडिंग में एक्टिव नहीं हूँ लेकिन चार्ट्स तो देखता ही हूँ। ठीक है, व्हाट अ क्रेजी वोलेटिलिटी टुडे इट वाज, और ऊपर से एक्सपायरी। ठीक है, इट वाज मतलब वो है वोलेटिलिटी, मतलब इट वाज लाइक रॉक्स,
मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक कैंडल ऊपर 400 पॉइंट, अगली कैंडल फिर 400 नीचे। इट वाज लाइक दैट। तो दैट इज द थिंग, तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो हाँ, तो मेरी कहानी यही थी। फिर मैं भी इंटरेस्टेड हुआ, मुझे भी लगा कि ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैंने उससे पूछा डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसने मेरा डीमैट अकाउंट खोला, पैसे ऐड करवाए, फिर शेयर्स बाई सेल करवाने शुरू कर दिए। उसके बाद की कहानी तो फिर यूट्यूब, जहां यूट्यूब पे पहुंच हुई ट्रेडिंग की, है ना, क्योंकि हम लोगों में चुल होता है ना, जब पैसा आना शुरू होता है तो हम और जानने की कोशिश करते हैं, और जानते चले गए जानते चले गए। फिर कब इक्विटी से इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी में स्टार्ट हुई, और कब इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ में स्विच हो गई, और कब एफएनओ से निफ्टी से बैंक निफ्टी में पहुंच गए, और कब वहां से फिर जब अकल ठिकाने आई, सब कुछ लगा, जोर का झटका लगा, बहुत सारी चीजें हुई, तब जाके फिर स्टॉक एंड ऑप्शन सबसे सेफ लगा। नहीं भाई, स्टॉक एंड ऑप्शन में ट्रेड करो, निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ बर्बादी की जगह है, यहाँ आप सिर्फ बर्बाद होंगे। है ना, मार्केट में 3,000 4,000 स्टॉक है, डेली के डेली 100 स्टॉक चुन लो, उसको अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। मैंने इतने अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो में समझाया भी हुआ है कि आप जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए कैसे स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। स्टॉक्स, आपने 3,000 स्टॉक्स में से 100 110 स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर लिया, और आराम से आप उसमें से फिर एनएससी की वेबसाइट पे आप चले गए, एनएससी की वेबसाइट से आपने टॉप 20 लूजर्स एंड गेनर्स देख लिया, बस 10 स्टॉक इधर के, 10 स्टॉक सी की साइड के छांट लीजिए, 10 स्टॉक पी की साइड के छांट लीजिए, उस पर एनालिसिस बिठा दीजिए अपनी, जो आपको मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, जो भी चीजें लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर आते हैं, और अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। दिन भर में 2-3% निकालना है, कौन सा बड़ा डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो डेट इज द थिंग। तो अल्टीमेटली हम बीइंग अ ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में एक ही चीज पता होती है कि हमें इजी मनी बनाना है, हमें हर हाल में इजी मनी चाहिए, और यही हमारी बैंड बजा देती है, हमारे लंका लगा देती है। ठीक है, आप मार्केट में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, यू कम इन दिस मार्केट विद अ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, और ये आपके लिए फिर डेडली डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, डेडली डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बीच में मैंने द हिंदू में एक रिपोर्ट पढ़ी थी। अ सीए हैज गिवन एन इंटरव्यू, एक सीए ने इंटरव्यू दिया कि आई हैव अ क्लाइंट हु इज जस्ट 20 years old and he has a debt of 25 lakhs on him, and what he did from those 25 lakhs, he traded in F&O। ठीक है, आज जो सेबी और आरबीआई के कान खड़े हो गए हैं, मैं ये चीज पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आज सेबी और आरबीआई के कान खड़े हो गए हैं कि देश में कितनी भयावह स्थिति आ जाएगी अगर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्यों? क्योंकि सब बेचने में लगे हुए हैं भाई, सब बेचो खरीदो। आज ट्रेडिंग में रिक्शा वाला, सब्जी वाला, आप रील्स देखो ना यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, आज मैंने ट्रेडिंग करके इतने पैसे छापे, इतने पैसे कमाए। ठीक है, अब मेरे मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, और रात में मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, मैंने इतने पैसे कमाए। ठीक है, ये देखो, मैं सुबह सुबह नौकरी पे जाता हूँ, नौकरी जब पे जाने से पहले 20 मिनट में मैंने इतने पैसे कमा लिए। आज मेरा काम करने का मन नहीं था, तो आज मैंने छुट्टी लेकर ट्रेडिंग की, और ये देखो मैंने आज इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया है, इसने इसने लोगों को इतना इम्पैक्ट किया, इतना इम्पैक्ट किया, कि लोग रियलिटी को समझ ही नहीं पाए, और लोग मार्केट में आए, और मार्केट का तो एल्गोरिदम ही है। द एल्गोरिदम ऑफ मार्केट सेज यू दैट आउट ऑफ 10 times इट विल गिव यू मनी फॉर 3 times, एंड 7 times इट विल टेक यू। और हम है ह्यूमन बींग। ठीक है, दुनिया की सबसे डम्बेस्ट प्रजाति हम ही है, हमें कहा जाता है दुनिया की सबसे वाइज प्रजाति, बट मैं बोलता हूं मैं दुनिया की सबसे डम्बेस्ट प्रजाति हूं। क्यों? मार्केट का एल्गोरिदम है कि 10 में से 3 बार तुमको पैसा देगा, और 7 बार तुमसे पैसा लेगा। अब हम ह्यूमन बींग है, उम्मीद तो बन जाती है, 3 बार पैसा मिला है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस इसी हेर फेर, इसी चक्कर में फिर लगे रह जाते हैं, इस उम्मीद में, चल दिया तो था, ले लिया कोई बात नहीं फिर देगा, अरे दिया तो था ले लिया कोई बात नहीं फिर देगा। कहाँ गई वो एनालिसिस, कहाँ गई वो बुक रीडिंग, कहाँ गया वो पढ़ने पढ़ाने का तरीका, कहाँ गया वो ट्रेडिंग को जानने और समझना, सब धुआं हो जाता है। सब का सब कुछ जो है वो धुआं हो जाता है। ठीक है, एवरीथिंग जस्ट इवेपोरेट्स। क्योंकि जब लोगों का क्या है ना, मैंने अपने आप पे ये चीज फील किया, अपने आप के, अब तो मास एनालाइज करके फील यही होता है, लोग जब अपने टर्मिनल पे ग्रीन देखते हैं, दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो चाहते हैं कि जो है उसको बुक करो। बट जब वो अपने टर्मिनल पे रेड देखते हैं ना, ये उनको प्यारा है ही नहीं।
लोगों का उल्टा है, लोग ग्रीन में वेट नहीं करते, रेड में वेट करते हैं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी आयरनी है। दिस इज द आयरनी। ठीक है, अगर ये चीज पलट जाए कि आप रेड में वेट ना करें और ग्रीन में वेट करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा अपने लेवल्स पे बैठ के अपने प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर चीजों को समझ के फिर आप ट्रेडिंग करें, आप देखिए आपकी ट्रेडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। बट वही है, लोग समझने को तैयार नहीं है, किसको क्या समझाया जाए। ठीक है, तो कमिंग इन विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कैन बी डेडली डिस्ट्रक्टिव इन द मार्केट। ठीक है, आपका एम, आपका टारगेट, आपका एम, आपका टारगेट, ठीक है, विदाउट अ प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब आपको अपना एम और टारगेट हमेशा फिक्स करके आना पड़ेगा। जब आप टेंथ में थे, ठीक है, तो आपने डिसाइड किया ना कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे एमबीबीएस करना है, या फिर नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, नहीं मुझे आईएएस बनना है, नहीं मुझे आईपीएस बनना है। आपने उसके हिसाब से फिर अपना ट्वेल्थ डिसाइड किया। ठीक है, स्टूडेंट्स कहाँ ही कर पाते हैं, गार्जियन डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ करने के बाद देन आपने, जब ट्वेल्थ हो गया तो आपने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपने अपना गोल इंजीनियरिंग सेट किया। टेंथ में ही ये सेट हो गया था, ट्वेल्थ तो उसका एक रास्ता था वहां तक पहुंचने का। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की, आपने अगर एमबीबीएस करने का सोचा, आपने अगर वहां से फिर नॉर्मल बीबीए बीए जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वो करने का सोचा, या जो भी करने का सोचा, यहाँ से आपने स्पोर्ट्स में जाने का सोचा, तो आपने क्या किया, आपने अपना एम और अपना टारगेट दोनों पेन डाउन किया, आपने दोनों को लिखा, आपने अपने दिमाग में इसको बिठाया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। क्या आपने ये चीज ट्रेडिंग में की? वेदर यू डिड दिस इन ट्रेडिंग, क्या आपने ट्रेडिंग में इस चीज को की? नहीं की। क्यों? क्योंकि आप यहां पे आ गए थे इजी मनी बनाने के लिए। आपको लगा ट्रेडिंग में इजी पैसा बनता है, 1 रुपया डाल 5 रुपया बन के निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए इजी मनी बनाने के लिए। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, टेंथ जितना, टेंथ का बोर्ड आपने फोकस्ड होके प्रिपेयर होके दिया था, जितना आपने ट्वेल्थ का बोर्ड प्रिपेयर्ड होके फोकस्ड होके दिया, जितना आपने आईआईटी जेई एआई ट्रिपल ई एमसैट वेमसैट कितने डब्ल्यू बी जेई जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, जितना फोकस करके आपने उसकी प्रिपरेशन की, क्या आपने ट्रेडिंग में आने के पहले उसका प्रिपरेशन किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने? क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग को तो आप इजी मनी मान के आए थे। ठीक है, यहाँ आप क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस एक डीमैट अकाउंट खोलो, पैसा ट्रांसफर करो और लगाओ बैठ के ट्रेड। ठीक है, बनेगा, पैसा छपेगा यहाँ, यही सोच के आ गए। एंड दिस वाज द क्या, डिजास्टर। ये आपके लिए डिजास्टर हो गया। तो जब भी आप ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है, इवन यहां से भी आप जब शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग को, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, बट बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रेडर बनना इज लाइक अपनी जिंदगी से सीखना। आपको अपनी जिंदगी से, उसके मिस्टेक से, उनकी चीजों से आपको लड़ना होगा, जूझना होगा और सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग में आए हैं, इफ यू हैव कम इन ट्रेडिंग, देन आपका गोल, आपका एम, आपका टारगेट एकदम पेन डाउन होना चाहिए, विथ फुल सीरियसनेस एंड फोकस। एकदम। क्यों? वाई? क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व्ड है, मनी इज इन्वॉल्व्ड। जब आप टेंथ में थे, ट्वेल्थ में थे, जब आप इंजीनियरिंग करने गए, बीटेक करने गए, एमबीबीएस करने गए, बीबीए करने गए, बीए करने गए, या जो भी करने गए, वहां पे आपके पेरेंट्स का पैसा इन्वॉल्व था। आपको पेरेंट्स मनी इन्वॉल्व था। बहुत रेयर होंगे जिन लोगों ने अपनी खुद की कमाई से अपने आप को पढ़ाया लिखाया होगा। ठीक है, बहुत रेयर होंगे। तो वहां पे आपके पेरेंट्स का पैसा इन्वॉल्व था, आपको मनी की साइकोलॉजी नहीं पता थी। आपके लिए मनी वाज जस्ट अ टूल टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इस मनी को कमाने के चक्कर में आपने अच्छे से खूब दबा के पढ़ाई की कि अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी सैलरी होगी, फिर अपने हिसाब से बाइक खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, ऐसे घर में रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया घूमूंगा, ये कर, पता नहीं क्या 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 सोचा होगा आपने।
ठीक है। फिर आपने ट्रेडिंग में इस चीज को आप यहाँ कैसे भूल गए? ट्रेडिंग में तो आपका अपना पैसा इन्वॉल्व था, आपकी अपनी सेविंग इन्वॉल्व थी। आपने जो पैसे कमाए थे, आपने जो पैसे बनाए थे, वो इन्वॉल्व था यहाँ पे। हाउ यू फॉरगेट इट? आप कैसे भूल गए इस चीज को? ठीक है, हाउ यू फॉरगॉट दिस, कि ये आपके खून पसीने की कमाई है, दिस इज योर हार्ड अर्न्ड मनी विच यू आर इन्वेस्टिंग हेयर। ठीक है, और मैं अपने खून पसीने की, जब मैं अपने पापा मम्मी के पैसों पे पढ़ने के लिए जब जा रहा था, तब तो मैं इतना फोकस्ड था। और जब मैं अपने पैसों पे, इतनी मेहनत से मेरे कमाए हुए पैसे, दिस टाइम दिस मच एज दिस हार्ड अर्न्ड मनी विच आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, मैंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ये मैं कैसे भूल गया कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं? एक एम होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, उसकी प्रॉपर एनालाइजेशन होती है, उसकी प्रॉपर एक स्टडी होती है। ये मैं भूल कैसे गया? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ठीक है, आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, सही में कहीं ना कहीं तो गलती हुई, और मार्केट ने मुझे धोखा नहीं दिया, गलती मेरी है। ठीक है, मार्केट ने आपको कहीं गलत वो नहीं किया, मार्केट ने हमेशा आपको सिखाने की कोशिश की, गलती आपसे हुई। ठीक है, मिस्टेक वॉज योर्स, इट वॉज योर मिस्टेक, इट वॉज योर मिस्टेक। तो इस चीज को आपको रियलाइज करना था, यू हैव टू रियलाइज दिस, आपको हर हाल में इस चीज को रियलाइज करना ही था। तो दैट्स वाई, तो अब जब आप एक ट्रेडर बनने आए, इसीलिए मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में ही कि आप यहाँ पे जब सीखने आए हैं, आप क्या सीखने आए हैं, क्या जानते हैं, क्या है, क्या चीजें हैं, वो सब आप ठीक है अपने तक ही रखिए। आप यहाँ जब बैठिए, एकदम जीरो बन के बैठिए। ठीक है, एकदम जीरो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आपके साथ बैठ के जीरो बन के ही बैठूंगा। मुझे जो आती है लर्निंग, जो है मेरी एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन आप एकदम जीरो बन के बैठिए, जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड बी टोटली जीरो। तभी आप यहाँ पे इस मौके को, यू कैन अचीव इट, एंड यू कैन करेक्ट योर सेल्फ बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। आप इन मौके को फिर भुना पाएंगे, और एक अच्छे ट्रेडर बनने की जर्नी फिर आपकी यहाँ से शुरू हो पाएगी। ठीक है, दिस इज द थिंग, है ना? तो दैट्स वाई आपको शुरुआत में लगता होगा क्या CAGR ये लेके बैठा हुआ है, CAGR कैलकुलेट करो, क्या होगा इससे? ठीक है, होगा ना। दिस इज माई एम, दिस इज माई गोल विच विल मोटिवेट मी टू बिकम अ गुड ट्रेडर, which will this is my aim and goal, which has been set with full seriousness and full focus, which will inspire me every day to become a trader। हाँ ना, कि 10 साल की पढ़ाई कर लूंगा, 12 साल की पढ़ाई कर लूंगा, तब जाके एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, 16 साल की पढ़ाई कर लूंगा, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। था ना ये? यहाँ कैसे भूल गए इस चीज को आप? हाउ यू इवन फॉरगॉट इट टू डू दैट? आप यहाँ इस चीज को कैसे भूल गए? क्यों? क्योंकि आपको दिखा इजी मनी, द शॉर्टेस्ट वे टू मेक मनी, बट वहां यहाँ आके पता चला कि भाई इतना भी, इतना भी क्या, ये इजी तो बिल्कुल था ही नहीं, कतई नहीं था। ये लड़ाई अपने आप से थी, ये लड़ाई अपनी ग्रीड से थी। दिस वॉर वाज विथ माई ओन, दिस वॉर वाज विथ माई ग्रीड, दिस वॉर वाज विथ माई ओन साइकोलॉजी। यार मैं ऐसी पर्सनालिटी हूं, मैं तो सोचता था कि मेरे अंदर लालच ही नहीं है। अगर मेरे अंदर लालच नहीं है, तो ये मार्केट में मैं रोज रोज ओवर ट्रेडिंग करके क्या करता हूँ? जवाब दो। आप सोचते थे ना ट्रेडिंग मैंने से ना, मैं तो बिल्कुल कोई लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे भगवान जो दे देगा, जितना दे देगा, जैसे दे देगा, मैं उसी में खुश हूँ। फिर ट्रेडिंग में आके कहाँ गई आपकी ये फिलॉसफी? क्यों भूल गए आप? क्यों आ गई आपके अंदर ये ओवर ट्रेडिंग करने की आदत? क्यों आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते चले गए? क्यों आपको जब प्रॉफिट दिख रहा था तो आपने उसको बुक करना छोड़ दिया? ठीक है, वैसे बहुत से सवाल हैं। तो ये खुद से रियलाइज नहीं होता, है ना? जब कोई सामने वाला बैठ के इस चीज को रियलाइज करवाता है, तो लगता है हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब तो हो ही रहा था। तो ये हम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम ये खुद रियलाइज क्यों नहीं कर सकते? व्हाई आई कांट रियलाइज दीज थिंग्स बाय माय ओन? मेरा ये सवाल। क्यों किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी? क्यों किसी की उंगली देखने की जरूरत पड़ेगी? क्यों हम अपनी दुख तकलीफों को खुद समेटने की कोशिश नहीं कर सकते? क्यों किसी पे हम अपनी उम्मीद बांध के बैठे हैं? वाई 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 वाई? क्योंकि बचपन से हमें उम्मीद देना सिखाया गया है, उम्मीदों पे रहना सिखाया गया है। बेटा फर्स्ट आओगे हमेशा, तो तुम्हें IIT में जाने का मौका मिलेगा।
बेटा तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिलेगा, तुम ये करोगे तो तुमको उम्मीदें दी गई हैं। तो हम बस उम्मीदों पे जीते चले जाते हैं, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो कर्म करना होता है, जो डेडिकेशन, जो मेडिटेशन, जो त्याग करना पड़ता है, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। और जो हम नहीं कर पाते हैं उसी की वही ट्रेडिंग ने आपको सिखा दिया है। मैं सोचता था सीरियसली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई लालच नहीं है, भगवान मेरे को 100 रुपए देता है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मेरे को ऐसा लगता था जब आई केम इन ट्रेडिंग, भाई मेरे को 100 रुपए तो मिल गए, आई शुड बी हैप्पी, वाई आई एम गोइंग टू फॉर 200, वाई आई एम गोइंग फॉर 300। तब समझ में आया, अरे बाप रे, मेरे अंदर तो कितना लालच है, मैं कितना, मतलब अपने आप को कितना अच्छा इंसान समझता था, मैं तो कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। ट्रेडिंग टीचेज यू एवरीथिंग, ट्रेडिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है। अल्टीमेटली ये जो बाई एंड सेल, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, किसी को लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ आरबीआई की मशीन तो लगी हुई है नहीं कि पैसा छपे जा रहा है सबको बटे जा रहा है, नहीं। अगर आपको आज 500 का प्रॉफिट हुआ है तो किसी को 500 का लॉस हो रहा होगा। अगर मुझे आज 1,000 रुपए का लॉस हुआ है तो मेरा 1,000 रुपया किसी ना किसी के पास जाके प्रॉफिट तो बना ही होगा। तो ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। दैट्स व्हाई इट, यू विल ऑलवेज हियर इट फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स कि ट्रेडिंग टीचेज यू लाइफ, ट्रेडिंग टीचेज यू द जर्नी ऑफ योर लाइफ, ट्रेडिंग आपको आपकी लाइफ की जर्नी बताता है। एंड दैट्स इज ट्रू। अब आपको ये चीज समझ में आती होगी, या इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, दैट्स व्हाई आप जब ट्रेडिंग में आए तो आपका पर्पस क्या था? ठीक है, तो आपका पर्पस था CAGR, दिस वॉज योर पर्पस, ये आपने कहीं से सुना और आपने इसको कैलकुलेट किया, फिर ये आपका एम बन गया, आपका फोकस बन गया। ठीक है, दिस बिकेम योर एम एंड दिस बिकेम योर फोकस। ठीक है, अब आप इसको फिर फर्दर अचीव करने के बारे में सोचने लगे। अचीव करने के बारे में सोचने के लिए एक बीइंग अ ट्रेडर, फिर आपने यहां से क्या स्टार्ट की, लर्निंग स्टार्ट की, प्रैक्टिस स्टार्ट किया। ठीक है, फिर धीरे 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 विथ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप फिर अल्टीमेटली फिर अपने टारगेट तक पहुंचे। ठीक है, अगर आप बिना किसी प्रॉपर डायरेक्शन के, ठीक है, या फिर गोल के अगर आप यहां आएंगे, ठीक है, तो आप यहां पे अपने आप को खो देंगे, यू विल लूज योर सेल्फ। इफ यू आर कमिंग इन ट्रेडिंग विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन और गोल, यू विल लूज योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को खो देंगे और आप अपना पूरा का पूरा पैसा भी खो देंगे, यू विल लूज योर होल कैपिटल। अभी बीच में कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक पिता पुत्र की जोड़ी ने जाके आत्महत्या कर ली, दे सुसाइडेड, दे वेयर सिचुएटेड इन मुंबई, और वो रेलवे ट्रैक पे जाके ट्रेन के आगे आके दोनों ने कूद के जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो दोनों ट्रेडर थे और ट्रेडिंग करते थे, और इतना लॉस हो गया कि आसपास के लोगों से कर्ज लेके यहाँ वहाँ सब बैंक वैंक सबसे कर्ज ले लिया था, और चुकाने का उनके पास कोई जरिया ही नहीं था। अल्टीमेटली दे सुसाइडेड, उन्होंने दे एंडेड देयर लाइफ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, अगर आप बिना ऐसे ही गोल गोल घूमते रह जाओगे, घन चक्कर बन जाओगे यहाँ के आप। ठीक है, अगर आप बिना प्रॉपर डायरेक्शन के, बिना प्रॉपर गोल के यहाँ ट्रेडिंग करने आओगे, आप यहाँ पे बाबू साहब घन चक्कर बन जाओगे। ठीक है, आप अपने आप को खो दोगे कि आप क्या थे, क्या आप अपने आप को डेली कोसते होगे। मैं जानता हूँ इस चीज को, कि आप जब ट्रेडिंग में आए हो, जब आपके ऊपर इतना कर्ज हो गया, इतना लॉस है, आप अपने आप को कोसते होगे, यार जिंदगी पहले ही अच्छी थी, कम से कम कट तो रही थी, इतना प्रेशर तो नहीं था, है ना? अब देखो क्या हो गया है। ठीक है, आप अपने आप को सीरियसली बहुत कोसते होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर डायरेक्शन और गोल तो सेट किया ही नहीं था। You never setted a proper direction and goal. That was the main reason that you lost yourself. अब आप सोचते हैं अरे इससे अच्छी तो पुरानी जिंदगी थी, वहां कम से कम 2 वक्त की रोटी बिना किसी के कर्ज के, बिना किसी चीज के, बिना किसी टेंशन के कम से कम खा तो पाता था मैं। ठीक है, अब लोगों को ट्रेडिंग में पैसा दिखा, लोग इतना पैसा कमाते हैं, ये कमाते हैं, लो सरकार ने ट्रेडिंग पे भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, एक तो इंडिया में रहने का मतलब, मुझे, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस देश के सिस्टम से बड़ी नफरत करता हूँ, बहुत नफरत है मुझे इस देश के सिस्टम से। ठीक है, मतलब आप ये सोचिए 149 बिलियन की पॉपुलेशन में ओनली 1.3 to 1.5%, 2% और 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गिव्स द टैक्स। ठीक है, और पूरी दुनिया उस पर आराम करती है। 10 करोड़ रुपए कमाने वाला किसान, उसको कोई टैक्स नहीं देना,
लेकिन अगर हम बैठ के ट्रेडिंग में 10 करोड़ कमाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? लेकिन ट्रेडर बनना, ट्रेडिंग करना, आप बैठे हो मेरे साथ, आपको पता है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। लड़का सरकार की नजर यहां भी पड़ गई है ना, कि अरे बाप रे ट्रेडिंग में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, यहां से भी निकालो पैसा। है ना? पिसता कौन है? मिडिल क्लास, हम और आप जैसे लोग ही पिसते हैं, और कोई नहीं पिसता इस देश में। अमीर अमीर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब है, मिडिल क्लास पीछे जा रहा है। कौन देश देश को चला रहा है? मिडिल क्लास चला रहा है, सर्विस सेक्टर चला रहा है। ठीक है, सैलरी कट के पैसे आते हैं, फिर उसी पैसे से फिर फर्दर हम जो चीजें खरीदते हैं उस पे जीएसटी, सीजीएसटी, ये टैक्स, फाइनेंस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। घर खरीदते हैं तो घर का टैक्स, प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स, फलना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, सारी सैलरी उसी टैक्स को चुकाते चुकाते स्वाहा हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है कि इंडिया में जो लोग सैलरी सेक्टर में काम करते हैं, वो अपने देश में सरकार के लिए 3 महीने कमाते हैं और 9 महीने अपने लिए कमाते हैं। वो आप सोच लीजिए, आप 3 महीने, तो 3 महीने की तनख्वाह तो आप सरकार को ही दे देते हैं। 3 से 4 महीने की तनख्वाह यू गिव टू द गवर्नमेंट। है ना? क्या किया जाए यार, क्या किया जाए? ठीक है, लेकिन क्या करें, अब देश छोड़ के भाग भी नहीं सकते। है ना? रहना इसी देश में है, जीना इसी देश में है। तो सबका चल रहा है, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। बस कट रहा है तो सबका कट रहा है, चलो कट रहा है तो अपना भी कट रहा है। इसी तरीके की कहानी है। ठीक है, खैर छोड़िए उस चीज को अभी। द प्राइम फोकस इज दैट ट्रेडिंग, योर पर्पस, योर गोल, CAGR इज योर प्राइम गोल। CAGR आपका प्राइम गोल है। इसका ये आपका एम है जिस पे आपको फोकस करना है। इसको आपको हर हाल में अचीव करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर लर्निंग एंड प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू गेट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज तक आपने क्या खोया, क्या पाया, कैसे क्या चीजें हुई, उन सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ठीक है, आपको इनिशियली इनिशियली मार्केट में 3 से 4 महीने का समय हमेशा लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे बिताना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल लूं, मैंने पैसा दे के लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की है। F&O में एक्सपायरी होती है, पहली एक्सपायरी का एक्सपीरियंस सबका होगा। ठीक है, एकदम घुस गए भाई, F&O में पैसा बनता है, डेली 3,000 बना रहे, 4,000 बना रहे, 6,000 बना रहे, 8,000 बना रहे। एक दिन गलती से पड़ गया थर्सडे, पहली एक्सपायरी। ये पढ़ना भूल ही गए, ये कहीं किसी ने बताया नहीं कि एक्सपायरी के दिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीरो हो जाता है। अब एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 90 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए। जो कॉल मतलब 3-4 दिन पहले 300-300, 400-400 की थी, वो एक्सपायरी के दिन 20-30-40 रुपए की मिल रही है। तो ये तो बड़ा अजूबा। अरे बाप रे, चलो 40 रुपए में खरीदा, मतलब 40 रुपए से अगर 400 जाएगा मतलब 10 टाइम्स मनी, 1 लाख लगाएंगे 10 लाख आएगा। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, और शाम होते होते वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जीरो। समझ ही नहीं आया हुआ क्या, ये जीरो कैसे हो गया। ठीक है, हाउ दिस हैपेंड जीरो। उसके बाद फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा, अच्छा 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 अच्छा, एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट का अपना प्रीमियम होता है, प्रीमियम में थीटा डीके होता है, डेल्टा डीके होता है, टाइम डीके होता है। ओके 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 ओके। ठीक है, ये तो हाल है हमारे जैसे ट्रेडर्स का। ऐसे ट्रेडिंग की है हमने, ऐसे सीखने की कोशिश की है। आप में से भी बहुत लोगों ने ऐसे ही सीखा होगा। ठीक है, तो इनिशियल 3 to 4 months यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा उससे हमारा मोरल क्या है? हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें छोटे से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी, और 3-4-6 महीने तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सही बता रहा हूं, आप ट्रेडिंग में 6-8 महीने तक एक प्रॉपर सेटअप पे काम करना अगर आपको आ गया, मार्केट को आप पढ़िए मत, मार्केट को फील कीजिए। ठीक है, मार्केट हमेशा अपने पीछे की चीजों को रिपीट करता है। अगर रिपीट नहीं करता तो मार्केट कभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं लेता। अगर मार्केट अपने पीछे की हैपनिंग्स को रिपीट नहीं करता तो मार्केट कभी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं लेता। तो आप हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ट्राई टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी डिटेल इन एज मच एज प्रिकारियस मैनर पॉसिबल। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 6 to 8 months, 3 to 4 5 6 months जो है
प्रॉपर एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए। जो भी सेटअप्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी सेटअप आपको समझाए जा रहे हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेज हैं, जो भी इंडिकेटर्स का प्रॉपर सेटअप है जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो मुझे पैसा कमा के दे रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि 3 महीने यहाँ सीख लिया, ये इंडिकेटर काम करता है, कहीं से और सुनने में आया, अब उस पर कूद गए, अब उस पर कूद गए, नहीं। ऐसे कभी पैसा नहीं बनेगा। एक बार कुछ चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए और उसको देखिए वो आपको सूट करता है या नहीं। अगर सूट करता है, देन start practicing on that, and seriously I am telling you that it is going to reward you, it is really going to reward you। ठीक है, आपको लगता होगा डेली मतलब कुछ भी पढ़ा नहीं रहे, कोई टेक्निकल चीजें, अरे ये टेक्निकल चीजें तो 20 दिन में खत्म हो जाएंगी। ये जो चीजें है ना, दिस इज द रियल थिंग, यही तो सबसे मेन है। टेक्निकल तो भाई आप किताबें पढ़ के यूट्यूब पर देख देख के भी चलो कुछ ना कुछ, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं ईएमए लगाना, ईएमए बताना, ये सबको आता है। उसमें डाइवर्जेंसेज कहाँ है, कैसे मार्केट को रीड करते हैं, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ, यही सिखाऊंगा ना आपको। बट अल्टीमेट थिंग इज दिस, ये जो मोरल है, ये जो लर्निंग है, क्यों आपसे मैंने पहले दिन सीएजीआर कैलकुलेट करवाया, आज क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक सीएजीआर जो आपने फोकस तरीके से कैलकुलेट किया है, डेट इज आवर मेन टारगेट, उसी टारगेट को हमें अचीव करना है, उसी टारगेट पे हमें आगे बढ़ना है। दिस इज द रीजन। ठीक है, विदाउट रीजन नथिंग कैन बी डन, है ना। हर चीज के पीछे एक रीजन है और हम उसको फॉलो करते हैं। हमें क्या है, हमें जल्दी जल्दी सब चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप 2 ढाई महीने में सब घोर के पिला दो, सब सिखा दो। ठीक है, टाइम पे सैलरी दे दो, टाइम पे फिर हम जॉब करेंगे, बस हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे आप फिर ट्रेडर कभी बन ही नहीं पाओगे। फिर तो जैसे जो चीजें चल रही थी वैसे ही चलती चली जाएंगी। भगवान ने, जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट चांस, एंड एकदम जीरो से, बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करके, मेरा यही कहना है। मैंने पहले दिन भी इंट्रो सेशन में आप लोगों से कहा था जब मैं सीएजीआर कैलकुलेट करवा रहा था, कि अपने आत्मा की कसम खा के सीएजीआर कैलकुलेट करना, द मोस्ट ऑनेस्ट वे पॉसिबल। और फिर उस सीएजीआर को ये चैलेंज करना कि मैं 10 साल के बाद तुम्हारे पास वापस लौटूंगा और मैं तुम्हें अचीव करके लौटूंगा। जिंदगी में आपने एक चैलेंज लिया अपने आप से, एक गोल डिसाइड किया आपने अपने आप के लिए, आप उस पर भी कायम नहीं रह पाए, तो आप काहे के इंसान हैं। धिक्कार है आपकी इंसानियत पे, धिक्कार है आप पे, थू है आप पे, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ठीक है, हम अपनी ही नजरों में अपनी आत्मा को बेचा है, अपनी आत्मा, द सोल, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी ह्यूमन। हमने उस चीज को, जब हमने उसकी कसम खाई और उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमें दुनिया में किसकी रिस्पेक्ट होगी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं होगी। तब तो हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम जस्ट अ रोबोट फॉलोइंग द कमांड्स गिवन इन दिस वर्ल्ड। कोई इधर से बजाता है इधर जाते हैं, कोई उधर से बजाता है उधर जाते हैं, कोई इधर से बजाता है उधर जाते हैं। इट इज लाइक दैट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज द रीजन, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर हैज अ रीजन। सो बस चुपचाप, पेशेंस के साथ, ठीक है, का पेड पेड स्टडी के साथ इसको सीखते चले जाइए। जस्ट ट्राई टू कीप इट इन योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, जस्ट ट्राई टू लर्न इट। सीएजीआर एक सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं है जो आपने मोबाइल और कैलकुलेटर की हेल्प से करके एक न्यूमेरिकल फिगर दिमाग में ले लिया है। हर दिन देखो, यकीन नहीं करोगे आप, मैं हर दिन देखता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं पूरे महीने का टारगेट 11th या 12th ट्रेडिंग सेशन में ही कंप्लीट कर लेता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे। फिर मैं बस मतलब मुश्किल से 0.5%, 1%, 2%, फिर मुझे मतलब अगर मेरा मान लेते हैं 2 करोड़ का कैपिटल है और मैंने मान लीजिए 2% टारगेट फिक्स किया हुआ डेली का 4 लाख, तो महीने का मतलब वो 80 लाख होता है। और फिर सब स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस अगर काट दें तो मान लेते हैं अगर वो 50 लाख होता है, जैसे ही मेरा 50 लाख अचीव हो जाता है ना, आई फील सो हैप्पी। अब मुझे लगता है डेली के अगर 30 40 50 हजार भी बन गए बहुत है। कौन कमाता है इतना यार, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ओनर्स, अच्छे अच्छे मतलब शॉप ओनर्स, अच्छे अच्छे जगहों के लोग नहीं कमा पाते, मैंने कमा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी, बहुत है इतना। वो सब बोनस है। इसका ट्रिप बनेगा, इसका कहीं और कुछ घूमने जाएंगे, कुछ अच्छा अपने लिए करेंगे, अपनी लाइफ को कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे, है ना। जो जो दिमाग में सोचा है वो सब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ सीएजीआर दैट डेली मोटिवेट्स मी।
एंड मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। दिस शुड बी लाइक दैट फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, तो कल नाउ वी विल, मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक दिन पहले का जो हमारा टॉपिक था वो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने शुरू से शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये उसके बाद फिर मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई योर पर्पस। आइडेंटिफाई योर पर्पस में मैंने आपको CAGR कैलकुलेट करने के लिए बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सक्सेसफुल ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको आपका टर्मिनल ऑब्जेक्टिव बताया, अल्टीमेटली बीइंग अ ट्रेडर व्हाट इज योर टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आज मैंने आपको बताया आपका नो योर पर्पस। आप ट्रेडिंग में क्यों आए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बीइंग हियर इन ट्रेडिंग, ये मैंने आज आपको बताया। ठीक है, टुमारो वी विल टॉक अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। अगले दिन हम लोग मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो गलतियां आपने की हैं, जो गलतियां आपसे हुई हैं, जो आप टाइम रहते रियलाइज नहीं कर पाए, वो आप मेरे साथ एक क्लास के माध्यम से बैठ के इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं। एंड आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाने की जर्नी में यू विल ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ। मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे, या आपको मेरी कोई हेल्प नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्प करनी है मेरी हेल्प से। ठीक है, यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू मैक्सिमाइज इट इन द बिगेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको मैक्सिमाइज करो और जितना अच्छा हो सकता है उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, तो वट एवर द क्वेरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई विल टेक इट ऑन सैटरडे। बाकी फॉलो द टाइम शेड्यूल, और 4 से 7 के बीच में जो भी आपको नॉर्मल क्वेरी है, जो टीम से चाहिए आंसर वैंसर, सिलेबस, सैलरी अकाउंट का फॉर्म यू विल गेट इट टुमारो, सिलेबस, बाकी डिटेल्स, नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें हैं वी विल टॉक इट अबाउट ऑन सैटरडे। कोशिश रहेगी कि संडे तक वो कंप्लीट हो जाए। बाकी सॉफ्ट कॉपी, बॉन्ड कॉपी, ये वो दिस दैट जो भी चीज़ें हैं, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू ऑल, एंड बाय सैटरडे आई विल ट्राई टू more explain it. Till the time I need some mental rest because something very critical is going on in at the moment, so somehow anything everything is going on like that. तो बस, चलिए, तो आप लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इस रिकॉर्डिंग को देखिए और समझिए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, लेट्स मीट टुमारो। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर्स, हैव अ नाइस लाइफ, enjoy your life, learn trading as much as you can, and let's meet tomorrow. Bye, good night.